Good afternoon, students. How are you? Today I am taking the chapter Human Reproduction, class 12th, NCERT, Biology. Before starting the chapter, let's have a little introduction about this. The name of the chapter is Human Reproduction. We all know that reproduction means reproducing the young one of its own kind. Secondly, it is the most important phenomena or the process to maintain the continuity of life on earth. This reproduction is of two types, asexual and sexual. We know that we all belong to human beings and there is only sexual reproduction here. So let's study sexual reproduction in human beings. For example, males have the reproductive organs testes, which produce sperms, and in females ovaries are there for the production of egg. यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ 10th में. And both sperms and eggs are produced by a cell division known as meiosis, means reductional division. So we will get haploid spores, haploid gametes or spores here, and they fertilize or fuse together to form zygote, and zygote forms embryo further, and embryo forms fetus, and a full-fledged baby is produced. This is the general basic phenomena in sexual reproduction. Let's move towards, first of all, male reproductive system in this series, because we are going to study here male reproductive system, female reproductive system, then gametogenesis, how the gametes are formed in male and female. Our next lecture will be regarding the gametogenesis, female reproductive system, and then menstrual cycle. After the menstrual cycle, it will be fertilization and implantation. Again, then pregnancy, and pregnancy के बाद parturition and lactation. So let's study one by one in this series of lectures of chapter 3. First of all, I am taking male reproductive system. You all know that in males there is a pair of testes. Let's go towards our slides. What are the testes? These are the external organs present in male reproductive system. I will show you in the diagrams made by me on the whiteboard so that this topic will be very clear to you. Let's move towards here. So students, today we are going to study the topic male reproductive system under the chapter human reproduction. Okay, first of all, let's know what is included in this male reproductive system. तो सबसे पहले आएगा testes, accessory ducts, glands, external genitalia. Let's move to see how these parts, at what location they are located, and what are their functions. They are performing different functions. So I am going to start from here, that is testes. These are the organs, pair of organs present in human males below the abdomen, outside the abdomen, you can say it, okay, outside the abdomen. This is the main male part in male reproductive system. In human male, there is a pair of testes, and the left testis is somewhat below in position as compared to the right testis. Okay. So according to the general size, this testis is 4 to 5 centimeter in length. They are having 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter in width. The coverage of testis, it is covered with the skin covering that is called scrotum. So this the function of scrotum is to maintain the temperature 2 to 2.5 डिग्री लेस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होगा.
अब वो क्यों कम होगा? पहली बात तो जो टेस्टिस है उसी में स्पर्म्स बनते हैं, तो स्पर्म्स को स्टोरेज के लिए और स्पर्म्स को वायबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर दैट कैन बी हार्मफुल, so at that temperature the sperms can get destroyed, so that's why the scrotum maintains the sperms at low temperature so that they can be easily viable, maintain viability. Okay, so the testis, we will study in detail the internal structure of testis. Let's see what happens in general when sperms are produced. They are carried by different ducts. I have written here accessory ducts. These are the different ducts which are involved in this male reproductive system. तो ये ducts का क्या काम है? कुछ ducts जो हैं ये देखिए ऊपर को जा रही है, means it is ascending upward in the abdomen of human male. ये जो डक्ट है ये टर्न होकर यू शेप, जो इन्वर्टेड यू शेप कवरिंग है, किसके ऊपर है? हमारे यूरिनरी, मेल के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर. ओके, सो बिफोर मूविंग हियर लेट्स कंप्लीट दिस पार्ट, दैट इज टेस्टिस. ओके, सो इफ वी कट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन को कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? इस टेस्टिस के ट्रांसफर सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स आर देयर. सो दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स which are present in these locules. There are different locules बन जाएंगे इसमें अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारे टेस्टिकुलर locules नजर आएंगे. कम से कम अप्रॉक्सीमेट 250 टेस्टिकुलर locules will be there. और ये जो locules हैं इन्हीं के अंदर ये हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई हैं. और हर locule में अगर हमारे पास 250 ये टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स हैं तो उसमें से जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है हर एक लॉक्यूल में कितने होंगे? 1 to 3. प्लीज फोकस हियर. यहाँ पे आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि टेस्टिस के अंदर जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स. अब लॉक्यूल्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसी में जो स्पर्म्स बन रहे हैं. ओके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या बन रहे हैं? स्पर्म्स. और कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं? 1 to 3. और कंपार्टमेंट्स कितने हैं हमारे लॉक्यूल्स? 250. तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी दिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स विल बी देयर. अगर 3 है एक लॉक्यूल में, 250 हमारे पास लॉक्यूल है तो इट वुड बी 750. ओके, सो दीज आर फॉर्मिंग हियर. अब ये जो है स्पर्म्स यहाँ बनते हैं. अभी मैं यहीं पे फोकस कर रही हूँ कि ये जो टेस्टिकुलर लॉक्यूल है उसके अंदर मैंने एक ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को लिया है. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम सेक्शन कट करके देखते हैं तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो पहली बाउंड्री है उसमें बहुत सारे पूरी कॉन्टिन्यूस लेयर आपको सेल्स की मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल्स. क्या नाम है उनका? स्पर्मेटोगोनियम. और जर्म सेल्स बोलते हैं, जो जर्मिनेट करेंगे आगे, मतलब जो प्रोड्यूस करेंगे किसको? स्पर्म्स को करेंगे. देखिए वो जो लेयर है स्पर्मेटोगोनियम की या जर्म सेल्स की, उनमें कुछ सेल्स हमारे थोड़े साइज में इलोंगेटेड साइज के होंगे. तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये साइड पे सारे क्या हैं? जर्म सेल्स. और जर्म सेल्स के बीच में ये मैंने रेड कलर के ड्रॉ किए हैं. सो इनका स्पेशल नाम है सर्टोली सेल्स. अब जो जर्म सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है? जर्म सेल्स को हमने दूसरा नाम भी दिया स्पर्मेटोगोनियम. ये सेल जो है ये डिवीजन करके हमारे क्या बना देंगे? स्पर्म्स बना देंगे. लेकिन जो इनके साथ इलोंगेटेड वाले सेल्स जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे रेड वाले, तो मैंने रेड कलर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था. तो दीज आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स. और सर्टोली सेल जो है इनको नरिशमेंट देते हैं जर्म सेल्स को, ताकि ये आगे जाके डिवाइड कर पाए और क्या बना पाए? स्पर्म्स बना पाए. ओके, सो इस पार्ट को हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस का ये वाला पार्ट. ओके, देन
टेस्टिस के अंदर ये समझ आएगा सर, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स हैं किसके अंदर पड़ी हुई है, लोक्यूल्स के अंदर। और लोक्यूल्स में यहाँ लिख देती हूँ। सो टेस्टिकुलर लोक्यूल्स आर 250 इन नंबर। टोटल 250 लोक्यूल्स हैं, उनमें सेम्निफेरस ट्यूब्यूल, और हर लोक्यूल में कितनी है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स? 3, 1 to 3। तो मैक्सिमम अगर हम 3 भी लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे हो गए 250 into 3 दैट इज 750 सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, नाउ अब हम इस सेम्निफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन देख रहे हैं। क्लियर? पहले हमने टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोक्यूल के अंदर सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये हमारा सेक्शन। अब इस सेक्शन की जो ब्लू कलर की बाउंड्री मैंने ड्रॉ की है, सो दीज आर द मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम। क्या करते हैं? यही स्पर्म्स बनाते हैं, लेकिन अपने आप नहीं बनाते हैं। इनको स्पर्म्स बनाने के लिए नरिशमेंट चाहिए, और साथ में इनको क्या चाहिए? कुछ हार्मोन्स प्रोडक्शन होती है मेल्स में, वो भी जरूरी है। और स्पर्म्स को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, स्पर्मेटोजोआ। अगर वो लिखा हो तब भी स्पर्म्स ही है, और स्पर्म लिखा हो तब भी सही है। ओके, सो फर्स्ट लेयर, अगर हम इस सेम्निफेरस ट्यूब्यूल की बात करें कि इसको अगर हम फिर से ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखें तो इसके अंदर हमें फर्स्ट बाउंड्री जो सेल्स की मिलेगी दैट विल बी मेल जर्म सेल, और दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। इनके बीच बीच में कुछ हमारे क्या है, जो रेड कलर के मैंने शो किया आपको, दीज आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये जो ग्रोइंग स्पर्म्स जर्मिनेट कर रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियम जो बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं, वो स्पर्म्स बना रहे हैं, तो उनको न्यूट्रिशमेंट कौन दे रहा है? दैट इज सर्टोली सेल। ओके, ताकि ये सर्टोली सेल्स उसको जितनी जितनी न्यूट्रिशन देता जाएगा उतनी उतनी स्पर्म की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। ओके, ये तो बात हुई एक सेम्निफेरस ट्यूब्यूल की। ऐसे ही हमने तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इसके साथ कोई दूसरी भी पड़ी होगी, कोई तीसरी भी पड़ी होगी। तो व्हेन सपोज हियर इट इज अगेन सेम्निफेरस ट्यूब्यूल, आई एम ड्राइंग हियर अगेन। सो इन बिटवीन दीज सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स देयर आर सम स्पेशल सेल्स, दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या नाम है इनका? इंटरस्टिशियल सेल, और दूसरा नाम है लिडिक सेल। इंटरस्टिशियल और लिडिक सेल। लिडिक सेल जो है यही हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से अडल्ट एज में जो लड़के हैं उनकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी, डीपनिंग ऑफ वॉइस, और ये जो लेरिंग्स है उनका प्रोट्रूडिंग हो जाएगा, ठीक है, और लड़कों की हाइट बढ़ जाएगी, उनकी बोन्स लंबी हो जाएंगी, उनकी और स्पर्म प्रोडक्शन वो शुरू कर देंगे, मीन्स दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, सो आई होप इट विल बी क्लियर। टेस्टिस का टीएस सेक्शन अगर हम पाटे, उसके अंदर टेस्टिकुलर लोक्यूल के अंदर सेम्निफेरस ट्यूब्यूल को सेक्शन कट करें, उसमें जर्म सेल के साथ कौन से हैं? सर्टोली सेल क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं। जर्म सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म्स बनाते हैं। और दो अगर हम सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के बीच के सेल्स की बात करें तो वो इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनके लिए दूसरा नाम भी है लिडिक सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल्स मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। आई थिंक ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी जस्ट हम ये बोल सकते हैं कि सपोज के स्पर्म प्रोड्यूस हो गए। ओके, अब जब स्पर्म प्रोड्यूस हो गए हैं तो हमें ये जो बाहर पे हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, टेस्टिस के आगे क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स। लेकिन टेस्टिस और एक्सेसरी डक्ट तक पहुंचते पहुंचते इतना आसान नहीं है। जो डक्ट है वो टेस्टिस के बाहर है, मीन्स वो अलग नजर आती है। तो अभी तक टेस्टिस के अंदर की हमने बाउंड्री ड्रॉ की है मैंने, और इसके अंदर देखिए ये जो सारी की सारी यही वाली जो ट्यूब्यूल्स थी, ठीक है, तो ये सारी कंडेंस होकर एक नई ट्यूब्यूल सी बना रही है, मीन्स इकट्ठी होकर, जैसे छोटी छोटी नालियां हैं तो वो मिलकर एक बड़ी नाली या नाला बना रही है। तो यहाँ पे सारे जितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे? इस पार्ट पे। ओके, दिस पार्ट पे। तो ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज रेटेटेस्टिस। क्या नाम है इसका? रेटेटेस्टिस। तो मैं इसका फुल लिख देते हैं, एक्चुअली मैंने आर्ट लिख दिया, रेटेटेस्टिस। क्लियर? आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। रेटेटेस्टिस के साथ ही है स्टार्टिंग इसकी है वासा इफ्रेंशिया, ये आ जाएगा हमारा डक्ट्स में।
डक्ट्स में क्या आएगा, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के आगे है इपिडिडिमस दैट विल बी स्टोरिंग द स्पर्म्स। यहाँ पे स्पर्म्स स्टोर होंगे। क्लियर। तो अभी तक ये हमारा इसके टेस्टिस के आसपास ही चल रहा था, और जैसे ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी स्टोरेज होती है स्पर्म्स की, एंड देन दे आर कैरिड बाय द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कैरिंग द वास डिफरेंस। ओके, क्या क्या हुआ पहले, टेस्टिस, सेमिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से क्या प्रोड्यूस हुए, स्पर्म्स, स्पर्म्स कहाँ पहुंचे, रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से कहाँ पहुंचे, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के बाद कहाँ पहुंचे, इपिडिडिमस। इपिडिडिमस के बाहर वाला पार्ट हमें नजर आता है मीन्स वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि ये वाला इनविजिबल चला जाता है माइक्रोस्कोपिक, और यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे वास डिफरेंस। So now here starts the accessory ducts, that is first one is the second one actually vas efferents is the first one and vas deferens is the second one। तो यहाँ पे अब ये मैंने एरोस शो कर दिए कि जो स्पर्म्स हैं दे आर मूविंग अपवर्ड। अब ये कहाँ जा रहे हैं, मीन्स अपर पोर्शन हम जो मेल का है दैट इज इन द एब्डोमेन, वो पेट के अंदर वाला पार्ट है, जबकि टेस्टिस हमें बाहर से नजर आते हैं। ओके, अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो हमें सिर्फ ये दो चीजें नजर आती हैं, टेस्टिस एंड पेनिस, बाकी सारा पोर्शन उनके एब्डोमेन में ही चला जाता है। ओके, तो वास डिफरेंस की जब ये क्रॉस करती है ऊपर से, यहाँ पे आते आते नेचुरली हमारा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी है, यहाँ पे यूरिन बन रहा है। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर तक यहाँ पे आते आते इसको नेक्स्ट 3 ग्लैंड्स मिलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लैंड्स। तो जितने भी हमारे ये सेक्स ग्लैंड्स हैं उनमें से है फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल, सेकंड प्रोस्टेट एंड थर्ड, इसको मैं नंबरिंग दे देती हूँ, नंबर 1 सेमिनल वेसिकल, नंबर 2 प्रोस्टेट एंड नंबर 3 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, अब ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं दे आर 2 इन नंबर, मतलब इसको अगर 3D हम देखेंगे पिक्चर में तो दूसरा भी नजर आएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड देखो रेड से बनाया, थोड़ा उसकी बैक साइड पे है एक्चुअली, यूरिनरी ब्लैडर की बैक साइड पे ज्यादा नजर आएगा आपको, हल्का सा इसका पोर्शन यहाँ पे नजर आएगा। देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी 2 इन नंबर, एक यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, एक थोड़ा सा इधर कर दिया। ओके, सो प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर 2 मीन्स एक्चुअली इट्स अ सीरियल नंबर, एक्चुअली नंबर इसका कितना है 1, टोटल काउंटिंग में 1 लिखेंगे। सेमिनल वेसिकल हाउ मेनी, 2 इन नंबर, बल्बो यूरेथ्रल 2 इन नंबर। सो इनका क्या फंक्शन है तीनों का, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेमिनल वेसिकल्स जो हैं दे आर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन। ये जो स्पर्म्स ऊपर से आ रहे हैं मीन्स टेस्टिस से रिलीज होकर इस वास डिफरेंस में पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने इसको बंद नहीं किया ट्यूब को, डक्ट जो है इसको मैंने क्लोज नहीं किया है, क्योंकि इसके साथ इसकी सिक्रीशन मिक्स होगी। ये वाला जो सेमिनल वेसिकल है ये सिक्रीशन देगा, एंड इट्स सिक्रीशन कंसिस्ट ऑफ फ्रक्टोज, सम एंजाइम्स एंड कैल्शियम आयंस एक्सेट्रा, सो दैट विल प्रोवाइड इट विल मेक द स्पर्म वायबल, एक्टिव, एनर्जेटिक। तो स्पर्म को एक तरह से एनर्जी मिल जाती है एंड दे बिकम एक्टिव एंड वायबल फॉर मैक्सिमम chances of the reproduction, so that it can reproduce, the female can reproduce by after the fusion with them। ओके, सो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन होगी, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी मैंने इसको क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे आगे सिक्रीशन, और इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड की भी यहाँ पे हो जाएगी, बल्बो यूरेथ्रल की, तीनों की सबकी सिक्रीशन यहाँ मिक्स हो गई। जब स्पर्म्स और तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिक्स हो जाती है देन वी कॉल इट एज सीमेन, जो एक्चुअली मेल से रिलीज होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, तो इनको हम क्या नाम देंगे, सीमेन। एक्चुअली इधर से लिखा नहीं जा रहा, ओके, सीमेन। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ तक आते आते हम स्पर्म को क्या बोलना शुरू कर देंगे, सीमेन। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, ये नेचुरल है कि यहाँ पे अगर स्पर्म से रिलीज हो रहा है, सीमन आ रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर का भी ओपनिंग इधर से ही आ रही है, मीन्स दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर इन मेल्स। किसके लिए, यूरिन रिलीज भी इधर से ही जाएगा और सीमन भी इधर से ही जाएगा, लेकिन दोनों एट ए टाइम नहीं जाएंगे। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करेगा तो ओनली यूरिन पास आउट होगा, और जब ये सेक्सुअल एक्ट होगा या क्वाइटस होगा तो देन स्पर्म्स और द सीमेन विल बी रिलीज।
तो यहाँ पर आते आते इस डक्ट का हम नाम बदल रहे हैं, दैट इज नाउ इट इज नोन एज, ये जो हमारी वास्ट डिफरेंस थी, यहाँ पर आते आते इसको हम क्या बोलेंगे अब नाउ, ejaculatory duct. So this is the next part. When the sperms along with the secretion of these glands is called semen. So this is the passage for this semen, means it is the ejaculatory duct. And see here, ejaculatory duct is entering in the penis. So this is in continuation with the penis. So the penis is external. Next part is external जेनिटेलिया, मीन्स ये हमें बाहर से नजर आता है मेल में, इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी आप बोल सकते हो, इसको पेनिस भी बोल सकते हो। एंड इट्स कवरिंग इज इट्स टिप इज नोन एज ग्लैंस पेनिस। इट हैज हाई रिच ब्लड सप्लाई। सो ग्लैंस पेनिस जो है इट इज क्वाइट सेंसिटिव, एंड जो इसकी ऊपर जो कवरिंग होती है स्किन की, टिप को हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, और जो ऊपर इसकी स्किन का फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं फोर स्किन। तो कई बार मोहम्मदन्स में या कुछ फॉरेनर्स की हम कुछ कैटेगरीज की बात करें तो, या फिर कुछ किसी धर्म में क्या होता है, ये जो फोर स्किन है ये इसको वो कट करवा देते हैं, जैसे मुस्लिम्स में, तो उन लोगों में हमें इन्फेक्शन के चांसेस कम मिलते हैं, जैसे उनको एड्स की प्रॉब्लम कम होगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कम होगी, क्योंकि ये जो स्किन है यहीं पे बैक्टीरिया की ज़्यादा पनपने की, अगर आप मतलब अपनी साफ सफाई नहीं रखते हो, अपना पर्सनल हाइजीन नहीं रखते हो, तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, सो ये जो ग्लैंड्स हैं ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इसमें से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रोल हो गया, सर्टोली सेल्स का रोल हो गया, लिडिक सेल क्या करते हैं, स्पर्मेटोगोनियम का क्या काम है, सीमेन किसको बोलते हैं, स्पर्म और सीमेन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके यहाँ पे काफ़ी बन जाएंगे, आई थिंक शायद क्लियर भी हो गए होंगे। तो सेमिनल वेसिकल्स की क्या सिक्रीशंस है, मतलब फ्रक्टोज देता है एनर्जेटिक, कैल्शियम आयंस जरूरी हैं। अब ये कुछ थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम बना देते हैं, ये जो ग्लैंड्स की सिक्रीशन है ये थोड़ा एल्कलाइन मीडियम बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है, फीमेल का जो वजाइना है, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देर आर सम यूजफुल बैक्टीरिया एंड दे परफॉर्म, दे गिव सम that is reactions which makes it acidic। तो फीमेल की वजाइना की जो हम कह सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है, सो फीमेल का वजाइना की जो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि क्या खासियत है, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो वो जो एसिडिक नेचर है उसको थोड़ा कवर अप करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो ये नेचुरली भगवान की तरफ से ये जो सिक्रीशंस हैं दे आर मेकिंग द सीमेन एल्कलाइन। ओके, इज इट क्लियर टू यू? दे आर मेकिंग द सीमेन एल्कलाइन। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड हैं इनकी सिक्रीशंस भी साथ में, एक तो एल्कलाइन मीडियम बना दिया, दूसरा ये न्यूट्रिशन इसको दे दिया, दैट इज फ्रक्टोज दे दिया, और तीसरी चीज है ये पेनिस की लुब्रिकेशन में भी हेल्प करते हैं। तो तीन फंक्शंस हो गए यहाँ पे ग्लैंड्स के। नंबर 1 फ्रक्टोज देता है, दैट इज एनर्जी देता है ताकि स्पर्म्स एक्टिव हो जाएं, दे मूव कर सकें, मूव करेंगे तो फीमेल के अंदर जाकर वजाइना के थ्रू जब पास किए जाएंगे देन दे विल फर्टिलाइज एंड दे विल हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, ओनली देन द फीमेल विल बी एबल टू बियर द चाइल्ड। सेकेंड, ये एल्कलाइन मीडियम बना देते हैं ताकि ये फीमेल की वजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके। थर्ड, ये पेनिस की लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं सो दैट पेनिस कैन बी इजीली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल। ओके, सो ये सारे आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। एक और आपका ये एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि एक तो यही हो गया कि व्हाई इट इज एल्कलाइन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एल्कलाइन मीडियम, हाउ इट फंक्शंस। सेकंड हो गया आपका ये न्यूट्रिशन कौन देता है, स्पर्म्स एक्टिव क्यों होते हैं, एनर्जेटिक क्यों होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड हमने जो ग्लैंड का नाम दिया था प्रोस्टेट, जो सिंगल ग्लैंड है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द पेयर। सो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जब कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं इन ओल्ड एज, जैसे हमारे घर में दादा हैं, बच्चों के दादा दादी हैं, दादी तो नहीं है एक्चुअली, दादा, ठीक है, तो मेल्स में है ना एक्चुअली। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इट कैन हैव सम प्रॉब्लम इन ओल्ड एज स्टेजेस। तो ये इसकी थोड़ी स्वेलिंग होने से, अगर आप खुद सोच लो कि अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा, सो इट विल मेक दिस ट्यूब और द डक्ट नैरो।
तो ये इसको थोड़ा नैरो कर देगा। नैरो करने से इसमें यूरिन की जाने की कैपेबिलिटी थोड़ी पासिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दादा दादी को, जैसे दादा को मेनली क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बार बार आपने नोट किया होगा, दे गो टू वॉशरूम्स फॉर पासिंग द यूरिन, दैट इज यूरिनेशन के लिए वो जाते हैं और उनको एक बार से अच्छे से यूरिन नहीं आता है। वो थोड़ा थोड़ा करके जाते हैं, बार बार उठते हैं, उनको थोड़ी तकलीफ रहती है कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे, और कई बार यूरिन बंद भी हो सकता है। तो और कई बार वो जब अपने बाहर आते हैं तो उनके कई बार कपड़े गीले भी हो सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इसका ड्रिपिंग सा मतलब हो सकता है। ओके, सो दैट इज ओनली ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, द डिजीज। इसके लिए कुछ स्पेशल नाम है जो इसकी स्वेलिंग के लिए, प्रोस्टेट की या इसकी प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। दैट इज मेडिकल टर्म यूज बाय सम डॉक्टर्स। मेरे को उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन प्रोस्टेट की आप कह सकते हैं, जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जो स्वेलिंग है, उसके लिए तो ये इसको आप नॉर्मली नहीं ले सकते हो इन केस ऑफ ओल्ड एज पीपल। ओके, सो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इसका एक एप्लीकेशन पार्ट बन जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल गो थ्रू दिस होल वंस अगेन। टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर सेमिफेरस टिब्यूल, सेमिफेरस टिब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स, जर्म सेल्स के साथ कौन से सेल्स हैं, सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन देते हैं। जर्म सेल्स क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं, और दो स्पर्म ट्यूब्स के बीच जो सेमिफेरस टिब्यूल्स के बीच वाली स्पेस है, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रोड्यूसिंग testosterone hormones and germ cells are producing spermatozoa and then they are produced in the retetestis। retetestis के बाद vasa efferentia, vasa efferentia के बाद epididymis, epididymis के बाद ये आगे पुश कर दिए जाएंगे, दैट इज इन द vas deferens। देन ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आते आते ये तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिक्स होगी। जब सिक्रीशन मिक्स होगी देन इट इज नोन एज सीमेन। तो सीमेन के साथ फिर ये इट विल बी रिलीज थ्रू द दिस यूरेथ्रा, मींस दिस इज फंक्शनिंग एज यूरेथ्रा as well as for the passage of semen. So both function will be here. So now see a flow chart here. So seminiferous tubule, retetestis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct and then urethra. Is it clear to all of you? So this is again वही flow chart है जो मैंने इधर पहले आपको explain किया. So for any query you can ask me at any time. You are most welcome. Thank you and have a nice day.